Hello, my dear students. Welcome back to my channel, Educational Corner. Today, we are going to start a poem named A Concrete Example from our NCERT English textbook, that is Purvi of Standard 8th. First, let us understand what is the meaning of the term concrete. Concrete means any hard or strong building material like stones or pebbles. So in this poem, we are going to learn about such material, that is stone, which is concrete example. So in this poem, we will learn about a garden which is made up of concrete, that is hard, strong building material like stones and pebbles. So let us start with the activity, a concrete example. कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट होता है एक हार्ड, ऐसी हार्ड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि स्टोन्स. तो हम इस पोम में पढ़ेंगे ऐसा गार्डन जो कि इसमें मेन है मिसेस जोन्स का जो है वो एक गार्डन है जो स्ट्रॉन्ग हार्ड बिल्डिंग मटेरियल से बना है, जिसके लिए हमने वर्ड यूज किया है कॉन्क्रीट. ओके, let us do these activities before we read the names of the items you usually find in a garden and write their names against each picture given below. So here are some names which are given over here, like garden hose, sapling, hedge, flower beds, flower pot, pebbles, rockery, fence, vine and wheel barrow. So we have to identify the picture and write the correct word over here. So let us see the first picture. The first picture is of hedge. Then second picture is of wheel barrow. आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रॉली है, 2 हैंडल्स हैं और एक आगे व्हील है, तो ये क्या है? एक व्हील बैरो. नेक्स्ट यू कैन सी a very small plant which is sapling. Then this is the bed of flowers and this is called flower beds. Then this is fence. Then next picture we have flower pot. Here you can see some stones are there, so we'll write pebbles. Then next picture, garden hose. Then the next picture is of vine. And finally the last picture, you can see some rocks over here, so it is called rockery. So this way you have to write the name in front of the picture which is given over here. Work in groups of 4. What kind of garden would you like to have? Mention the features that you can include and reasons for your choice. Share your answers with your classmate and teacher. So what you have to do, आपको इसमें ये लिखना है कि किस तरह का गार्डन आपको पसंद है और उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए और क्यों आपने उन फीचर्स को इंक्लूड किया, उसका रीज़न लिखना है. So you can write like this, that I want a garden full of colorful and beautiful flowers with fountains in the middle, tall trees in corner and flower beds. I want such a garden because I love fragrance of flowers. ठीक है, मुझे कैसा गार्डन पसंद है? जो पूरा कलरफुल और ब्यूटीफुल फ्लावर्स से भरा हो, जिसमें फाउंटेन्स हो मिडल में और टॉल ट्रीज कॉर्नर में हो और वहाँ पे फ्लावर बेड्स भी हो. और ऐसा गार्डन मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि आई लव फ्रेगनेंस ऑफ, मुझे इनकी जो स्मेल है या खुशबू है वो पसंद है, इसलिए. Question number 3. Read the title of the poem. What comes to your mind when you read the word concrete? Does it have more than one meaning? Share your answer with your classmate and teacher. जब हम टाइटल पढ़ते हैं पोम का, concrete एंड अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, तो ये क्या इसका मीनिंग निकल के आता है? कॉन्क्रीट का मीनिंग मैंने आपको बताया. कॉन्क्रीट का मीनिंग है हार्ड बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि स्टोन्स और पेबल्स. और इसका और भी कुछ मीनिंग है? यस, इसका और भी मीनिंग है. कॉन्क्रीट मीन्स आइदर एग्जिस्टिंग इन मटेरियल और फिजिकल फॉर्म, एक मीनिंग ये है. दूसरा मीनिंग मैंने आपको बताया, बिल्डिंग मटेरियल मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ ब्रोकन स्टोन और ग्रेवल, सैंड, सीमेंट एंड वाटर. द हार्ड बिल्डिंग मटेरियल जो होता है उसे हम कॉन्क्रीट कहते हैं. ठीक है, हार्ड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल लाइक स्टोन्स. So in this poem we are going to talk about a garden
which is made up of stones. That is why it is a concrete example. So this garden is concrete example. Let us read. Now we have some word meanings over here. पहला है rockery, an arrangement of rough stones, जहाँ पे stones लगे हो, rocks लगे हो, उसे rockery बोलते हैं. Sundial, an instrument showing the time by the shadow of sun. सनडाइल क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो टाइम शो करता है सन की शैडो से. नाउ लेट अस रीड. माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स हैज गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स. सो ये जो पोम है ये नेक्स्ट डोर नेबर के बारे में है. नेक्स्ट डोर नेबर में जो मिसेस जोन्स रहती हैं उनके पास एक गार्डन है जो पूरा स्टोन्स के साथ भरा हुआ है. इट इज़ फुल ऑफ स्टोन्स, मतलब ये गार्डन जो है ना ये स्टोन्स से भरा हुआ है. अ क्रेजी पाथ, अ लिली पॉन्ड, अ रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड. क्रेजी पाथ क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा रास्ता. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रास्ता है ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है. ठीक है, तो क्रेजी पाथ है. लिली पॉन्ड, इसमें एक लिली पॉन्ड है जहाँ पर पॉन्ड के अंदर लिलीज हैं. रॉकरी, रॉकरी देखो यहाँ पर रॉक्स लगे हुए हैं, ये रॉक्स है ना, ये रॉकरी. एंड जस्ट बियॉन्ड, उसके जस्ट आगे. अ सनडाइल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस. सनडाइल कहाँ है? ये रहा सनडाइल. ठीक है. विच मिसेस जॉन्स थिंक्स रेदर नाइस. तो मिसेस जॉन्स को जो अच्छा लगता है. तो मेरी जो नेक्स्ट डोर नेबर है जिनका क्या नाम है मिसेस जॉन्स, उनके पास एक गार्डन है. कैसा गार्डन है? जो फुल ऑफ स्टोन्स है, पूरा ही स्टोन से भरा है. वहां पर क्या क्या है? एक क्रेजी पाथ है. क्रेजी मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता. एक लिली पॉन्ड है, एक ऐसा पॉन्ड है जिसमें लिली फ्लावर्स हैं. रॉकरी है यानी कि रॉक्स बने हुए हैं. ठीक है. एंड जस्ट बियॉन्ड, उसके जस्ट आगे एक सनडाइल है. सनडाइल क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर जो आपको टाइम बताता है शैडो ऑफ सन से मेजर करके. ठीक है, उससे टाइम बताता है वो. और वो सनडाइल जो है वो एक स्ट्रेंज डिवाइस है, अजीब सा अनोखा सा डिवाइस है जो मिसेस जोन्स को लगता है कि बहुत नाइस है, बहुत अच्छा है. देखिए यहाँ पे वर्ड्स हैं जैसे डिवाइस, नाइस, पॉन्ड, बियॉन्ड, जोन्स, स्टोन्स, ये राइमिंग वर्ड्स है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैरा. नाउ हेयर ऑल्सो वी हैव वर्ड मीनिंग्स. डेलिकेट मतलब बहुत, वेरी फाइन इन टेक्सचर, बहुत नाजुक या डेलिकेट. माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स पुट लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स. तो जो मेरी नेक्स्ट डोर नेबर है, स्पीकर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो मेरी नेक्स्ट डोर नेबर है जिनका नाम क्या है? मिसेस जोन्स. वो क्या करती हैं? मिसेस जोन्स जो है वो लिटिल प्लांट्स को स्टोन्स के बीच में कैसे लगाती है. ठीक है, लिटिल छोटे छोटे प्लांट्स को देखो स्टोन के बीच में लगा रखा है, स्टोन्स के बीच में. दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल, वो बहुत ही नाजुक से हैं और बहुत ही छोटे हैं. तो किस तरीके से लगाती हैं? दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल. आई कांट थिंक हाउ शी गेट्स देम इन अनलेस शी प्लांट्स देम विद अ पिन. तो वो अंदर जाके उनको कैसे लगाती हैं स्टोन्स के बीच में लिटिल प्लांट्स को, क्योंकि उनको लगाना बहुत ही मुश्किल है. जब तक कि उन प्लांट्स को पिन के साथ ना लगाया जाए वो प्लांट्स नहीं लग सकते. ठीक है, तो माय नेक्स्ट डोर नेबर वो क्या करती है मिसेस जोन्स, उनके पास बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं, लिटिल प्लांट्स हैं जो उन्होंने स्टोन्स के बीच में, पत्थरों के बीच में लगा रखे हैं, जो बहुत स्मॉल और बहुत ही नाजुक है. ठीक है, और ये जो प्लांट्स हैं वो जब तक इनके बीच में घुसकर प्लांट्स को पिन के साथ ना लगाएं तब तक इनको नहीं लगा सकते. Now here we have word meanings. A quarter of an hour, it is a unit of time equivalent to 15 minutes. जब भी हम बोलते हैं quarter of an hour, इसका मतलब होता है 15 minutes. ठीक है. My next door neighbor Mrs. Jones once asked me round to see her stones. So अब स्पीकर को इनवाइट किया गया. किसने इनवाइट किया? नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स ने, कि आप आकर मेरा जो ये जो मेरा गार्डन है इसको देखो, कि ये स्टोन से बना हुआ है, इसको आकर देखो. वी स्टूडेंट टॉक्ड अबाउट अ फ्लावर फॉर क्वाइट अ क्वार्टर फॉर ऑफ एन आवर. मतलब हम दोनों खड़े हुए और हमने किसके बारे में बात करी? किसी फ्लावर के बारे में बात करी. कितनी देर तक? क्वार्टर ऑफ एन आवर मीन्स 15 मिनट्स तक हमने किसी फ्लावर के बारे में खड़े होकर बात करी. वेयर इज दिस लवली थिंग आई क्राइड. तो स्पीकर ने पूछा कि ये जो लवली थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये है कहाँ, ये इतनी प्यारी चीज़ है, ये है कहाँ? यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, शी रिप्लाइड. सो उन्होंने क्या बोला मिसेस जोन्स ने, कि तुम उसके ऊपर ही खड़े हुए हो. मीन्स पूरा जो गार्डन है
वो ही उनका लवली गार्डन है, चाहे वो स्टोन से बना है। वो हर चीज़ को जो है ना फ्लावर की तरह समझती थी, इतना वो अपने गार्डन से प्यार करती थी, उनको अपने गार्डन से इतना लगाव था। सो द पोएट हियर इज रेगिनेल्ड आर्केल. So the poem A Concrete Example by Reginald Arkale is a humorous poem about the speaker's neighbor named Mrs. Jones and her unique stone-filled garden. This poem highlights the beauty and charm of Mrs. Jones' garden, which features a stone path, a lily pond made of stones, a rockery, and a sundial. The poem uses playful language and irony to explore themes of the joy of gardening. This poem also focuses on Mrs. Jones' joy of gardening and love for gardening. It also tells that she loves her garden very much. So I hope you have understood this poem. Let us now quickly understand once again the summary of this poem. Summary of the poem. The poem describes Mrs. Jones, the speaker's next door neighbor, who has a unique garden filled with a variety of plants and features, including a peculiar pond, which is full of lilies, a rockery, and an unusual flower she finds charming. Mrs. Jones plants tiny seedlings between the stones, which the speaker thinks must be so small that they are planted with a needle. One day, Mrs. Jones invites the speaker to see her garden and they discuss a rare plant. The speaker asks where the flower has been growing, and Mrs. Jones says that the butterfly has been on it along. So, this poem is a humorous poem about the speaker's next door neighbor who is Mrs. Jones, और Mrs. Jones का एक यूनिक गार्डन जो कि स्टोन से बना हुआ था. उसमें क्या क्या था, एक पॉन्ड था फिल्ड विद लिलीज, रॉकरी थी, और this garden was filled with plants, tiny plants, which were very small and delicate. And one day the speaker visited her garden and they discussed about a particular flower, and the speaker asked where this flower is. So Mrs. Jones told that this is where you are standing. Okay, so with this I'll end up my video today, and I hope you have understood the poem. Now I'll come up with the question answers in my next video. If you are liking my videos, please do subscribe my channel and share your valuable comments with me. Thanks for watching.